गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करेंगे वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हमारा फोकस होगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंटरैक्ट एंड कंट्रोल एंड नॉट कंट्रोल, इट इज कंप्लीमेंटिंग द फंक्शन ऑफ ईच अदर। ओके, तो लिखेंगे वी ऑलरेडी गॉन थ्रू इट इन द चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी in class 10. Now coordination is the process coordination is the process through which coordination is the process through which two or more organs of the body, two or more organs of the body interact and complement the function of each other. ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस which makes two or more organs to work as a functional unit and are in harmony to carry out some vital activity. Integration क्या है? देखो, integration is the process through which two or more organ works as a functional unit. Two or more organ works as a functional unit in harmony, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाएगा, in harmony to carry out what? Some vital, means very important functions of the बॉडी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन वर्क्स एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मोनी टू कैरी आउट व्हाट? सम वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नाउ इन हायर एनिमल्स two types of system are developed for the coordination purpose, and they are nervous system and the endocrine system. The nervous system coordinate different functions of the body through a network of neuron and by the help of nerve impulse, whereas the endocrine system coordinate different functions of the body through the help of the chemical messenger, and that chemical messenger is called hormone. Okay, so in higher animals including human two types of system. Two types of system
had been developed. Two types of system have been developed. For what? For control, coordination and integration. Okay, for control, coordination and integration. What are they? That is nervous system and endocrine system. Nervous system and endocrine system. Now the question is how these two systems function. We must have a brief idea. Okay, nervous system provide an organized network. Okay, nervous system क्या करेगा? देखो ये nervous system और endocrine system. We have just discussed what is the function of nervous system. The nervous system provides an organized okay network of neuron. It provides an organized network of neuron. तुम हॉरिजॉन्टल करो, मेरा मोबाइल ठीक है बहुत ऊपर है, ठीक है. टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, which spread throughout the body of animal, which spread throughout the body of neuron. Which spread throughout the body of neuron. Now throughout the body of neuron is animals. ठीक है, कुछ भी गलत लिख रहे टोका करो तब ना समझ आएगा एक्टिव हो. Which spread throughout the body of animal. Now endocrine system. Endocrine system provide chemical coordination of organ by release of a chemical that acts as a chemical messenger and that is called hormone. ठीक है, तो लिखेंगे the endocrine system it provides, क्या प्रोवाइड कर रहा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन. इट प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, थ्रू hormones, through hormones which acts as a chemical messenger. जो किस प्रकार काम कर रहा है? which acts as a chemical messenger. तो ये एक brief idea हो गया. So now we are reading here about, we are learning here about neural control and coordination. So our main focus is today on nervous system. Okay, so how nervous, we all know that nervous system of a human being control through a network of neuron, and this neuron transmit nerve impulse from one part of the body to another part to coordinate the function of the body. So our next question is how neural control works, or what we can say what are the characteristics of nervous or neural control. तो हम इसके बाद जानेंगे कि नर्वस कंट्रोल का या न्यूरल कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? एक ही चीज है, तुम नर्वस कंट्रोल बोलो या न्यूरल कंट्रोल बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि न्यूरॉन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. समझ गए? कोऑर्डिनेशन कॉमन एग्जांपल है भाई. तुम देखो, जैसे तुम डाइजेशन करते हो, तो अगर डाइजेशन करते हो तो राइट फ्रॉम माउथ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑल आर इन्वॉल्व.
ठीक है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्ट, जैसे ही स्टमक में फूड गया, क्या शुरू हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज किया, HCl, पेप्सिनोजेन, एंड क्या रिलीज किया, म्यूकस। ठीक है, वो फूड जब सेमी डाइजेस्टेड होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के समय ही बाइल जूस लिवर से रिलीज हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो रहा है दैट इज एसिडिक इन नेचर, and to protect the duodenum, that is the first part of the small intestine, from the acidic effect of the food, what is happening? It is happening that the liver is immediately becoming active. It releases bile juice through the gallbladder and make the duodenum basic. When basic and acidic food reacts, it cause a neutralization reaction. तो ये एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन कब कब कहाँ काम करेगा, that are systematically arranged. और ये सिस्टमेटिकली अरेंज करवा कौन रहा है, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, समझ आया? तो HCl रिलीज होता है तभी ना हम बोल रहे हैं कि फूड तुम्हारा ये बनता है एसिडिक। अभी हम क्या बोल रहे थे, ठीक है। और वो अगर एसिडिक फूड मान लो डायरेक्ट ड्यूडेनम में चला गया, इट मे कॉज सम हार्म टू द सरफेस ऑफ द ड्यूडेनम। तो उससे बचाने के लिए बिफोर द एसिडिक फूड दैट इज काइंग इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस इज ऑलरेडी सीक्रेटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है, इनटू द ड्यूडेनम, ताकि अगर वो पहले से ही बेसिक रहेगा और यहां से एसिडिक फूड आएगा तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट। समझ आया? ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली हो रहा है हर काम। माउथ में तुम कुछ खाती है, तुरंत सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल जाता है। क्यों? Because saliva contain a special enzyme called salivary amylase, and salivary amylase is capable of digestion of carbohydrate up to 30% in our mouth. समझ गए? अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नर्वस और न्यूरल कंट्रोल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। What are they? First, it is rapid, means nervous control is through nerve impulse conduction, and nerve impulse is flowing at a very rapid rate. Second, it takes place by an electrical signal called nerve impulse. That is the second characteristics of neural control. Third, nerve impulse travel in a specific direction. Nerve impulse travel in a specific direction. Okay, these are the characteristics of neural control. Now we must have to focus in brief on the nervous system of different animals before we entering into the nervous system of human being. Okay, so our next topic is nervous system in animal. Nervous system in animals. Now the question is, what is the nervous system of different animals? First, sponges that are included under porifera totally lack neuron. Sponges lack neuron. Second,
In Hydra, all neurons are similar in structure, okay, and are connected to one another, forming a network between epidermis and gastrodermis. Okay, लिखेंगे. Second है Hydra. In Hydra, all neurons are equal. All neurons are equal and are linked. All neurons are equal and are linked to one another forming a network, and this network is also known as plexus, plexus, forming a network between epidermis and gastrodermis, between epidermis and gastrodermis. Third क्या है? Planaria has two nerve cord that converge to form a rudimentary brain, means underdeveloped brain. Planaria, platform जिसको बोलते हैं. Planaria, what planaria have? Planaria have two nerve cord that converge to form a rudimentary brain. Now fourth, the earthworm. ठीक है, अब हम लोग earthworm में आएंगे. In earthworm, a central nervous system. In earthworm, the central nervous system consists of, in earthworm, a C.N.S, that is central nervous system, consists of a single nerve cord, single ventral nerve cord, a single ventral nerve cord, and a single ventral nerve cord and a segmented ganglia. Now we come to cockroach, which belongs to the phylum Arthropoda. It has the most developed among the animal, have a nervous system. Okay, in cockroach, the nervous system is in cockroach, the nervous system is fairly well developed in comparison to other animal what we discussed earlier. What they have a brain, ventral nerve cord, segmental ganglia and the nerve. They have brain, ventral nerve cord, segmental ganglia. Brain, ventral nerve cord, segmental ganglia and the nerves. So these are the nervous system which is fairly well developed, and they have brain, ventral nerve cord, segmental ganglia, nerve in cockroach. फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम एनिमल्स में स्पॉन्जेस जो पॉरीफेरा में आता है टोटली लैक न्यूरॉन. नेक्स्ट हाइड्रा, ऑल न्यूट्रॉन, जितने भी न्यूरॉन्स है दे आर इक्वल एंड आर लिंक्ड टू वन अनदर फॉर्मिंग अ नेटवर्क. नेटवर्क मींस आल्सो नोन एज प्लेक्सस.
between the epidermis and the gastrodermis, which is working like a stomach. Third is planaria, that is platform. Planaria have two nerve cord that converge to form rudimentary brain. Now in earthworm, the central nervous system has a single ventral nerve cord and a segmented ganglia. Next, cockroach. Cockroach the nervous system is fairly well developed. It has a brain, ventral nerve cord, segmental ganglia and the nerves. यहां तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं न्यूरल सिस्टम, है ना। अब नर्व क्या है, न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम कितने टाइप का, हम लोग ये सब जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूरल सिस्टम, है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। सो न्यूरल सिस्टम इज द कंट्रोल system of the body. Our next day's topic is neural system. What is neural system? Neural system is the control system of the body which consists of highly specialized cells. Neural system is the control system of the body. Neural system is the control system of the body which consists of highly specialized cell. Highly specialized cells called न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम क्या है? न्यूरल सिस्टम जो है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी है जो कंसिस्ट करता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, और इस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ओके, द सेंसरी न्यूरॉन, दो तरह का न्यूरॉन होता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन from different sense organ. Okay, from different sense organ, sensory neurons क्या करता है? Sensory neuron detect and receive different information from the sense organs. They detect and receive different information from the sense organ in the form of the stimuli. In the form of the stimuli and transmit the form of stimuli and transmit the stimuli to the, और ट्रांसमिट कहां पे करेगा? ट्रांसमिट द स्टिमुली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रांसमिट द स्टिमुली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके थ्रू? थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर, थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर। और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इसमें क्या होगा? इन CNS द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज डन एंड अ कंक्लूजन इज ड्रॉन। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम the processing of the information is done
एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन, जब तक कंक्लूजन नहीं होगा वो क्या कमांड भेजेगा, एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, द कंक्लूजन मैसेज इज सेंट, द कंक्लूजन message is sent to different organs through motor neuron। किस न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर होगा, थ्रू मोटर न्यूरॉन to act accordingly। This command from the central nervous system is received by effector cells of the ऑर्गन्स। और इसको रिसीव कौन करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज, जो कमांड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है उसको रिसीव करता है इफेक्टर सेल। और इफेक्टर सेल कहां पाया जाता है, ऑर्गन में। सबसे पहले जो स्टिमुलस एक सेंस ऑर्गन रिसीव करता है वो रिसीव करता है रिसेप्टर सेल से। ठीक है, और रिसेप्टर सेल से जब वो स्टिमुलस को रिसीव करता है तो वो सेंट्रल नर्व सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे सीएनएस में भेजता है। सीएनएस उस मैसेज को पहले प्रोसेस करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, एक कंक्लूजन ड्रॉन करता है, और कंक्लूजन ड्रॉन करने के बाद वो एक कमांड भेजता है। वो कमांड किसके थ्रू भेजेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसको भेजेगा, ऑर्गन को भेजेगा, जिस ऑर्गन से वो रिलेटेड कमांड है। लेकिन ऑर्गन की किसमें भेजेगा, दीज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल एंड दे आर कॉल्ड इफेक्टर सेल। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया कि एक नॉर्मल आइडिया व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। और न्यूरल सिस्टम में दो तरह का न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम है ऑर्गन से रिलेटेड मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। और मोटर न्यूरॉन का काम है रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे कमांड को हमारे ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ऑर्गन के किस पार्ट में पहुंचाना, इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, एंड व्हाट इज दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इफेक्टर सेल। इसको कहा जाता है इफेक्टर सेल। यानी स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है रिसेप्टर सेल और कमांड को रिसीव कर रहा है इफेक्टर सेल, और दोनों ही ऑर्गन में पाया जाता है। अब एकदम क्लियर हुआ, ऑल इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब हम बोलो हाँ देखो, जो मैसेज आ रहा है, एक कॉमन एग्जांपल, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जोर से चुट्टी काटे, ठीक है, या मान लो तुम घर में अचानक गई, ठीक है, स्कूल ट्यूशन पढ़ के, और तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया है, ठीक है। अब तुम मम्मी चाय देने बोली, तुम बिना सोचे समझे चाय को हाथ से उठा ली। अब उठाने के बाद तुमको पता चला कि बहुत गर्म है, अब गिराएगी तो घर में खाएगी अच्छे से, ठीक है। तो उस समय जैसे ही तुमको हाथ में गर्मी लगा, वो गर्मी का एहसास कौन किया, तुम्हारे हाथ में रिसेप्टर सेल, और वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां पे चला गया वो मैसेज, मेरे ब्रेन में। मेरा ब्रेन विद इन अ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तुरंत उस मैसेज को पहले एनालाइज किया और फिर कंक्लूजन ड्रॉन किया कि हाथ को हटाना है। तो हाथ को कैसे हटाना है, वो तुम्हारा तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू हाथ को डायरेक्शन दिया कि आप उस कप को नीचे रख दीजिए कहीं भी सुटेबल प्लेस में। तुम तुरंत रखी और हाथ को हटा ली, समझ गए। तो ये जो पूरा मैसेज है ये पूरा कंट्रोल कर रहा है सीएनएस, समझ आया। ठीक है, मतलब यहां पे जो भी तुम काम कर रही है ना, वो स्टिमुलस के कारण कर रही है, समझ गए। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मान लो कि तुम गुलाब के पेड़ में हाथ देने गए, पिंचिंग हो सकता है, या कैक्टस को गलती से लग गया हाथ, तो उसका जो स्पाइन है हाथ में घुसा, तो वो जो पियर्सिंग हुआ स्पाइन का, दैट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस, एंड दैट इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर सेल ऑफ योर हैंड, एंड थ्रू सेंसरी न्यूरॉन दैट मैसेज गोज टू आवर ब्रेन। फिर ब्रेन उस मैसेज को डिकोड किया और हमारे हाथ को कमांड दिया कि हाथ को हटाओ वहां से,
तो हाथ हटा, समझ गई? रिपोर्ट कैसे किया मतलब? वो एनालाइज किया, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम है फॉरब्रेन का पार्ट, उसमें तुम्हारा एसोसिएशन एरिया है और उसमें एनालाइजिंग, थिंकिंग और मेमोराइजिंग पावर है। वो एनालाइज किया तभी ना काम करेगा। वो पूरा काम कर रहा है सेरिब्रम, विच इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, समझ गई? अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा देखो, द होल नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज डिराइव फ्रॉम इक्टोडर्म, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका ओरिजिन क्या है? इक्टोडर्म एम्ब्रायनिक जर्म लेयर। ओके, तो लिखेंगे द होल नर्वस system of the human derived from the ectoderm germ layer. Ectoderm germ layer. Now the human neural system or nervous system is divided into two parts. The human neural system या nervous system जो लिखना है is divided into two parts. Okay, what are these parts? First is central nervous system, जिसको अभी तक हम लिख रहे थे शॉर्ट में C.N.S. and the second is peripheral nervous system. Okay, now what is central nervous system? Central nervous system consists of two parts, that is the brain and the spinal cord. It consists of two parts. What are they? That is brain and spinal cord. ठीक है? अब what is brain? Brain is the site of information processing and control. Brain is the site of information processing and control. Now what is peripheral nervous system? Peripheral nervous system comprises of all the nerves which come from the different part of the central nervous system. ठीक है, that is brain and spinal cord. It also consists of two type of nerve fiber like afferent nerve fiber and efferent nerve fiber. Okay, तब हम लोग लिखेंगे next what is peripheral nervous system. It comprises of all the nerves. It comprises of all the nerves associated with central nervous system, that is brain and spinal cord. Now the nerve fiber of the peripheral nervous system are of two types. The nerve fiber
of the peripheral nervous system is of two types. फर्स्ट क्या होगा? एफरेंट फाइबर. Efferent fiber, and the second is efferent fiber. अब सवाल है efferent fiber क्या है और efferent fiber क्या है? Efferent fiber transmit impulses from the tissue cell or organ into the central nervous system. It transmit impulses from the tissue or organ to central nervous system. ठीक है. और efferent fiber क्या करता है? They transmit regularly impulses. It transmit regulatory impulses. It transmits regulatory impulses from central nervous system to क्या होगा? Related organ to concerned tissue और organ. ठीक है. तो ये हो गया पेरिफेरल. पेरिफेरल में क्या है? ये कंप्राइज करता है नर्व्स का विच आर एसोसिएटेड विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. व्हाट आर दैट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नाउ द नर्व फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, एफरेंट एंड इफरेंट. एफरेंट क्या करता है? पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन से उसको ट्रांसफर करता है हमारे सीएनएस तक, और इफरेंट क्या करता है? सीएनएस से ट्रांसफर करता है रिलेटेड टिश्यू और ऑर्गन तक. ठीक है. यहां तक समझ आया? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो. तुबा, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलो. अंकित, ठीक है. तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है सोमाटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. ठीक है. Peripheral nervous system is again divided into two parts. First is somatic neural system and second is autonomic neural system. First is, what is somatic neural system? It relay impulses from the central nervous system to the skeletal muscles. It relay impulses from central nervous system. It relay impulses from central nervous system to skeletal muscle. जब somatic neural system is that peripheral nervous system which relay impulses from C.N.S to skeletal muscle. And what is autonomic neural system? It transmit impulses. It transmit impulses from central nervous system to the इनवॉलेंट्री ऑर्गन. इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारे विल के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता है. इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी. और ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. It is again divided into
two parts. One is called sympathetic nervous system and the second is called parasympathetic nervous system. ठीक है. Now next question is what is visceral nervous system? Visceral nervous system is a part of peripheral nervous system which comprises of the whole complex of nerve fiber, ganglia and plexus. Okay, तब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. यहां तक समझ आया सोमाटिक और ऑटोनॉमिक? ठीक है ना. तो हम लोग एक और लास्ट आते हैं विसरल नर्वस सिस्टम. Visceral neural system. What is visceral neural system? It is a part of P.N.S, that is peripheral nervous system. It is a part of peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerve fiber, whole complex of nerve fiber that comprises the whole complex of nerve fiber, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस. ठीक है. बाय विच impulses travel from central nervous system to viscera and from visceral by which impulses travel from central nervous system to visceral nervous system and from visceral nervous system to central nervous system. ठीक है. ये हो गया visceral neural system. ठीक है. ये एक पार्ट है एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही. तो ये हो गया नर्वस सिस्टम का डिटेल. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. देखो बेसिकली अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो न्यूरॉन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे लंबा पार्ट है एक्सॉन एंड थ्रू एक्सॉन द नर्व इंपल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ठीक है. थोड़ा सा हम लोग पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, क्योंकि तुम लोग जो 2020 के हो तुम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिलीटेड था, खास करके सीबीएसई स्टूडेंट्स का. तो ये हम लोग थोड़ा देख लेंगे. देखो हाँ, जो नहीं पढ़े उसके लिए बोल रहे हैं. देखो जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये नर्व सेल है. ठीक है.
ठीक है, हो गया ये, देखो ठीक है, देखो ये हो गया स्ट्रक्चर न्यूरॉन का पूरा। अब ये जो है ये मेन है, दैट इज साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। ये शॉर्टर एक्सटेंशन है, दिस ऑल आर कॉल्ड डेंड्रॉन, या इसका दूसरा नाम क्या है, डेंड्राइट्स। साइटोन और सेल बॉडी में एक टिपिकल साइटोप्लाज्म है। जब न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। और ये जो है ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड निसिल ग्रेन्यूल्स। क्या कहा जाता है, निसिल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब जहां से तुम्हारा एक्सॉन शुरू होता है इसको कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। ये जो पूरा पार्ट है लार्जर एक्सटेंशन का, ये है तुम्हारा एक्सॉन। और एक्सॉन में देखो बीच बीच में ये जो है, दिस इज स्वान सेल, और स्वान सेल के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन बना है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। एंड माइलिन शीथ आर इम्परमिएबल टू न्यू इंपल्स। इसका नेचर क्या है, इम्परमिएबल, मतलब ये अपने ऊपर से नर्व इंपल्स को अलाउ नहीं करता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि साइटोन का काम है, डेंड्रॉन का काम है नर्व इंपल्स को परसीव करना, ग्रहण करना और उसको साइटोन तक पहुंचाना। और साइटोन एक्सॉन के थ्रू ये नर्व इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है या पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रांसफर करता है। तो यहां पे क्या दिक्कत है कि नर्व इंपल्स तो माइलिन शीथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। तो देखो बीच बीच में इस तरह का ये गैप है, ये जो गैप है इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है, रोड ऑफ रेनवियर। और ये रेनवियर के थ्रू ये जो तुम्हारा नर्व इंपल्स है वो जंप करता है और फाइनली टर्मिनल एंड तक आ जाता है। इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब के अंदर में इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। और ये जो तुम्हारा साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इसी में केमिकल रहता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। ये एसिटाइल कोलिन हो सकता है, डोपामीन हो सकता है, ठीक है। और साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कि एक न्यूरॉन में, खास करके एक्सॉन में, किस तरीके से नर्व इंपल्स का फ्लो होता है। और इसको जानने के लिए हमें जिस टॉपिक को फोकस करना है उसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहां तक समझ आया ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, अभी भेजेंगे। देखो तो मिटा देते हैं। generation and conduction of nerve impulse, ठीक है। This is the topic. Next topic. Now the question is, what is nerve impulse? Nerve impulse is a wave of bioelectric or electrochemical disturbance that passes along a neuron. Okay. Nerve
impulse, ठीक है, nerve impulse is a wave of bioelectric or electrochemical impulses that passes along a neuron during conduction of या transmission of an excitation, now अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा इंपल्स कंडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स डिपेंड्स अपॉन. इंपल्स कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन, जो इंपल्स है ये कंडक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट permeability of the axon membrane, permeability of the axon membrane. axon membrane को क्या कहा जाता है, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा. और सेकंड क्या है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, osmotic equilibrium. Osmotic equilibrium, that is between osmotic equilibrium between the exoplasm, that is the cytoplasm of the axon and extracellular fluid, and extracellular fluid. In some reference book it is written as ECF, extracellular fluid present outside the axon, okay. So first impulse conduction depends upon, the first is permeability of the axon membrane and the second is osmotic equilibrium between exoplasm and extracellular fluid which is located outside the axon. Now the generation of nerve impulse is the temporary reversal of the resting potential. Resting potential means when it is totally in the relaxed state, resting potential in the neuron. The generation of nerve impulse, the generation of nerve impulse is the temporary reversal. इसका temporary reversal, temporary reversal of the resting potential, in the न्यूरॉन. मतलब यहां पे जो न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल या रिलैक्स स्टेट में है उसका टेम्पररी एक्साइटेशन होता है. नाउ इट ऑकर्स इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स. इट ऑकर्स इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स. और वो फॉलोइंग 3 स्टेप्स क्या है, पहला पोलराइजेशन. पोलराइजेशन को कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल. सेकेंड डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एक्शन पोटेंशियल. मींस इन दिस स्टेट द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज
एक्साइटेड और वो दोबारा फिर से तुम्हारा रेस्टिंग पोटेंशियल में आएगा, दैट स्टेप इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। नाउ थ्रू a diagrammatic view we learn how these three steps are going on. Okay, तो यहां तक समझ आ गया जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। मेम्ब्रेन का दूसरा नाम लेना है। देखो एक्सॉन अभी बनाए थे ना, न्यूरॉन में जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा कहा जाता है, और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। क्लियर? मतलब और कई मेम्ब्रेन रहेगा तो हाँ, जैसे याद करो मसल्स का जो मेम्ब्रेन था उसको क्या बोले थे? सर्कोलेमा। आगे पकड़ेंगे हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। मसल्स का जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सर्कोलेमा। समझ गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है लेकिन ऑर्गेन टू ऑर्गेन, ठीक है, इसका नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है। समझ गए? ठीक है, जैसे याद करो प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग मास, तो सेल के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं ना। तो जगह के अनुसार इसका नाम चेंज हो रहा है लेकिन फंक्शन वही है। ठीक है, अब देखो होता कैसे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी स्कूल में ये टॉपिक देगा ही देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये एक हम एक्सोन मेम्ब्रेन बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये पूरा स्टेट है पोलर रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, कौन सा स्टेट है? रेस्टिंग पोटेंशियल। जब कोई भी एक्सॉन मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में होगा तो क्या होगा? ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स 0 है, और ये जो पूरा एक्सॉन मेम्ब्रेन है इसके अंदर में ह्यूज अमाउंट में पोटाशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होगा, और बाहर में ह्यूज अमाउंट में सोडियम आयन होगा। बाहर में सोडियम आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण द होल एक्सॉन मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, दोनों तरफ यही सेम केस है। और अंदर में क्योंकि पोटासियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज टोटली नेगेटिवली चार्ज। एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेस्टिंग पोटेंशियल इज -30 इलेक्ट्रॉन मीटर वोल्ट। ओके, दिस इज अ स्टेट when the whole axon membrane is totally in a resting state, that is called resting potential or polarized state. क्या बोले थे इसको? पोलराइजेशन। नाउ व्हाट हैपेंस? दिस, इससे भी पहले क्वेश्चन है हाउ दिस इज मेंटेन। दिस इज मेंटेन ड्यू टू सोडियम पोटासियम पंप। इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में है सोडियम पोटासियम पंप, जिसमें 3 सोडियम आयन आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा है, उसके बदले 2 पोटासियम आयन इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, जिस कारण से मेम्ब्रेन का अंदर में पॉजिटिव पोटासियम आयन ज्यादा है और बाहर में सोडियम आयन ज्यादा है। एज अ रिजल्ट, ड्यू टू सोडियम आयन, द आउटर साइड ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर साइड ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, एंड सो the whole membrane is in resting state with a value of -30 इलेक्ट्रॉन मीटर वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद होगा
तुम्हारा नेक्स्ट डीपोलराइजेशन स्टेट, जब ये हो गया डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में क्या होगा, डीपोलराइजेशन में होगा कि व्हेन अ स्टिमुलस when a stimulus of adequate strength, when a stimulus of adequate strength, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, when a stimulus of adequate strength, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, is applied to a polarized membrane. Polarized means resting membrane. To a polarized membrane, the permeability of the sodium ion in the inside of the membrane greatly increase. The permeability of the sodium ion in the part of membrane, पूरा नहीं, part of the membrane greatly increase. अब क्या होगा, इस पार्ट को मान लो साइट ए और ये पूरे को मान लो साइट बी. साइट ए में क्या हुआ, सडनली सोडियम आयन अंदर जाने लगेगा. सोडियम आयन इज गोइंग टू द इनर साइड, सो फ्रीक्वेंटली द इनर साइड इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज एंड द आउटर साइड इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज अब उल्टा खेल हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग, द रिवर्स केस इज ऑकरिंग हियर, सोडियम इनसाइड, पोटेशियम आउटसाइड. And when this happen, it is undergoing to depolarization state, and the value of this from minus 30 meter electron volt, ठीक है, सॉरी माइनस 30 नहीं, माइनस 70 कर दो, minus 70 meter electron volt goes to 0, and from 0 to plus 30 meter electron volt. ये मैक्सिमम स्टेट है. लेकिन ये जो स्टेट है, इसी स्टेट को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल. मींस अब ये एक्साइटेड हो गया, लेकिन जो बी पार्ट है दैट इज इन द अर्लियर स्टेट, दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल. रेस्टिंग पोटेंशियल, और रेस्टिंग पोटेंशियल मींस ये एक्साइटेड नहीं हुआ है. तो यहां पे बाहर में क्या होगा, अंदर होगा, बाहर होगा पॉजिटिव चार्ज और अंदर होगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अंदर यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और बाहर में क्या होगा, आउटसाइड द मेम्ब्रेन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. व्हाई, बिकॉज दिस कंडीशन इज सिमिलर टू दिस. इनसाइड यहां पे पोटेशियम आयन होगा एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगा, एंड आउटसाइड सोडियम आयन होगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एट एडजेसेंट साइड बी में स्टिमुलेटेड नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिकल करंट जो है पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट की ओर जाएगा. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली अगर हम अंदर में देखें तो द इलेक्ट्रिक चार्ज एक्साइटेशन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम इनसाइड, और व्हेन वी आर गोइंग थ्रू आउटसाइड द चार्ज नर्व इंपल्स ट्रांसफर फ्रॉम साइड बी टू ए. ठीक है, इस तरीके से होगा. अब इसके बाद क्या होगा कि दिस प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन एंड इंपल्स इज कंडक्टेड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन. ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि अब ए के बाद बी एक्साइटेड होगा. बिफोर द बी बिकम एक्साइटेड इट इज मस्ट दैट द ए which is from resting potential, that is polarization,
comes to depolarization state, that is excited state, reback to the resting state. जब तक A दोबारा रेस्टिंग स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा, B एक्शन पोटेंशियल या एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी यहां पे जो साइकिल है वो है रेस्टिंग स्टेट, एक्शन स्टेट, अगेन रेस्टिंग स्टेट। इस तरह से ये साइकिल लगातार चलते रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन क्या है? देखो, रीपोलराइजेशन में होगा तुम्हारा कि द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस permanent permeability to sodium ion is extremely short-lived. Within a time, as the value reaches to plus 30 meter volt, this entrance of sodium ion is completely stopped, and again the same cycle continue. फिर से दोबारा वही साइकिल होगा, 3 सोडियम आयन बाहर जाएगा और 2 पोटासियम आयन अंदर आएगा। तो अब क्या होगा देखो, ए फिर से दोबारा वही केस होगा, सोडियम आयन यहां अंदर जा रहा था ना, अब यहां पे सोडियम आयन बाहर जाएगा और अंदर पोटेशियम आयन आएगा। तो बाहर क्या होगा? फिर से अंदर हो गया नेगेटिव चार्ज और बाहर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बाहर में जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर से देखो, पहले ये रेस्टिंग में था, फिर ये एक्साइटेड हुआ, फिर से दोबारा क्या होगा? ये रेस्टिंग होगा, है ना। अब जब ये रेस्टिंग होगा तो फिर ये एक्साइटेड होगा। तो ये हो गया साइड बी, ये हो गया साइड सी। तो बी में फिर से वही कहानी होगा, द परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन इंक्रीज। तो अंदर में सोडियम आयन आएगा, तो अब अंदर का जगह क्या हो जाएगा? ठीक है, अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी ये अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में था, अब ये किस में आ गया? एक्शन पोटेंशियल में आ गया, यानी एक्साइटेड हो गया। इस तरीके से फिर अगर सी पार्ट पे एक्साइटेड होना है तो पहले बी पार्ट को दोबारा एक्शन पोटेंशियल से किस में जाना पड़ेगा? रेस्टिंग पोटेंशियल में जाना पड़ेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस होगा फॉर द फुल एक्साइटेशन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन, और इसी तरीके से ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना, अनटिल रिपोलराइजेशन ऑकर, जब तक रिपोलराइजेशन नहीं होगा, न्यूरॉन कैन नॉट कंडक्ट अनदर नर्व इंपल्स। न्यूरॉन दूसरा नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर सकता है, एंड द टाइम टेकन फॉर दिस रीस्टार्ट और रिस्टोरेशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये जो दोबारा नर्व एक्सॉन को एक्साइटेड किया जाता है, इसके लिए जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई थिंक कि 2020 जो 2021 22 जो सिलेबस है, आई थिंक दिस इज मैक्सिमम इट मे कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्व इंपल्स का सारा बाकी अगर ये होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और फिर मूवमेंट एंड लोकोमोशन में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।